So in the last class we discussed about the non-conservative forces, right? And in today's class we have to discuss a little more about the non-conservative forces. If possible, work power energy, we will also discuss that in today's class if possible, or not we will discuss that in tomorrow anyhow. Chalo. So we will see some more questions based on the types of forces, conservative, non-conservative. See दोनों को मिला के अच्छे questions बन सकते हैं हम. So आज के क्लास में कुछ और questions देखते हैं हम. So let's see. मेरे पास में imagine this is a block. Okay. The mass of this block is m, okay, and the coefficient of friction over here is mu. Initially the speed of the block was v, and let's say the block has covered a distance of s, okay, and told here s nahi, let's say one thing ki after traveling some distance the speed of the block reduced to 1/3, ठीक है. So final speed v by 3 बची है. Initial speed इसका v था and mu is the coefficient of friction. So question is that find the distance covered. Find the distance covered for the following figure, for the following situation, for the following situation. Okay. Chalo, try karo. The answer should be in terms of v, mu, m and g only. Try. Or should I tell you directly the answer? I'm giving you 1 minute's time. In that you can try it. Okay. I think I even gave you a homework question, no? In yesterday's class. Okay. So did you try that? Yes, sir. So what's the answer? 0.8. So I guess this was the spring. What was the spring constant? K is equals to 100 Newton per meter now. I think the mass of this block was 20 kgs or 10 kgs? 10 kg. 10 kgs. Yes. And it was connected to a pulley, and the pulley was further connected to a block of mass 20 kgs over here, right? Yes, sir. Okay, what was the coefficient of friction? 0.2 now? Yes, sir. Chalo. So the question was find the maximum elongation in the spring as soon as I release this block. ठीक है, दोनों questions देखते हैं. पहले ये वाला ऊपर वाला question try करो, and then after that we will be seeing this question. Chalo, let's see. So as stated in the figure in the first question, देखते हैं, okay. What I will do, I can say that throughout the motion of this block, there is this constant friction force acting on the block in the left side, right, or in the direction opposite to the motion. है ना? The friction force is acting continuously in the opposite direction. What is the value of friction force? It's nothing but mu times of m times of g. Mu mg is the friction force. बराबर ना? Now it's acting in the backward direction. So I'll apply the energy wala formula. So work done by the non-conservative force or the friction force is nothing but change in total energy, right? So can I also say that total work done by the friction force is nothing but final energy minus initial energy, correct ना? Work done का formula क्या होता है? It's nothing but force multiplied by F bar dot S bar ना, that is equals to final energy minus initial energy, है ना? अब F bar dot S bar check करो, because friction force is acting in the left side and the displacement of the block is in the right side.
they are both in the opposite direction, so the angle between them will be 180 degrees, and the value of f bar dot s bar is nothing but minus f into s, right? So negative f multiplied by s is equals to final energy minus initial energy, correct ना? अब फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एम टाइम्स ऑफ जी, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी क्या होगा अक्षर इसके पास में, ओनली हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास मल्टीप्लाइड बाय वी बाई 3 का होल स्क्वायर, करेक्ट, वी बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी इज नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर, बराबर. नाउ लेट्स ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. सो द फाइनल आंसर विल बी माइनस, अच्छा ठीक है एक काम करो, सबसे पहले सिंप्लीफाई करो उसको, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एम टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू, आई एम डायरेक्टली चेक करो तुमको समझ में आता है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर बाय 9, राइट, इट्स माइनस हाफ एम वी स्क्वायर. सो अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर को बाहर निकालूंगा, आई विल बी लेफ्ट विथ 1/9 माइनस 1, बराबर ना. सो माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एम टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ एस. So minus mu times of m times of g times of s is equals to half times of m. 1/9 minus 1 is nothing but minus 8/9, correct? So the negative sign over here will get cancelled. So it's mu times of m times of g times of s is equals to, can I directly write it as 8m by 18? So it's also 4m by 9 now. So is equals to 4m by 9, correct now? सॉरी इट्स ऑल्सो वी स्क्वायर्ड भी है ना यहाँ पे, सो हाफ एम वी स्क्वायर्ड, सॉरी, सो वी स्क्वायर्ड भी आएगा इधर से, करेक्ट ना. सो एम एम गेट्स कैंसल्ड फ्रॉम बोथ द साइड, सो आई विल बी लेफ्ट विथ म्यू टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू 4/9 वी स्क्वायर्ड. सो द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज नथिंग बट 4/9 मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय, अभी बिकॉज दिस म्यू एंड जी आर इन मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों इधर जाके डिवीजन में हो जाएंगे, म्यू टाइम्स ऑफ जी. So this is the displacement, S is equals to 4 times of V square upon 9 times of mu times of G. So this is the displacement at which the speed of the block is reducing to 1/3. Samjha, all of you? Yes, sir. Okay. Now in the second scenario, this question states that I have this block of mass 10 kg and the coefficient of friction is 0.2. The spring has the spring constant of 100 Newton per meter and the 20 kg block has been suspended. So I have to find the maximum elongation in the spring. So how will I do? उससे पहले एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ बेसिक एग्जांपल. लेट्स से दिस इज माय स्प्रिंग एंड इट इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक. लेट्स से द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज m एंड द स्प्रिंग हैज द स्प्रिंग कांस्टेंट k. अब आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन. अभी मैंने ब्लॉक को पकड़ के रखा है. एज सुन एज आई विल रिलीज दिस ब्लॉक आई विल हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, की कितना मैक्सिमम एलोंगेशन आएगा x का, ठीक है. होगा क्या अक्षरा, एज सुन एज आई रिलीज दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा, फिर ऊपर आना स्टार्ट होगा, फिर ये पूरा का पूरा ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, बराबर ना. Yes, sir. सो आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एक्सीलरेशन. तो सबसे पहले चेक करो एट दिस पॉइंट, मान के चलो यहाँ पे कहीं पे मेरा अर्थ है या ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ग्राउंड है. लेट्स से द हाइट इज h, बराबर ना. व्हेन द ब्लॉक कम्स टू दिस पॉइंट, कैन यू टेल मी व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, दिस हाइट. व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड नाउ. पूरा डिस्टेंस h है. नाउ दिस डिस्टेंस इज x, सो व्हाट इज द रिमेनिंग डिस्टेंस. कैन आई से h माइनस x. Okay, chalo. So this is my initial point. So I'll write it as initial point and later is my final point. So this is initial point and this is final point. तो मेरे को ना देखना है what forces are acting throughout the motion. So first force is the gravitational force that's acting throughout the motion and the second force is the spring force that's acting throughout the motion. Correct ना अक्षरा? हाँ ना बोलो. Yes, sir. तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है. व्हाट इज द फार्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग, मैंने बोला था ना तुमको. mg No, not mg. It is the gravitational half potential. kx square. Half kx squared. So the potential energy stored in the spring is half kx squared and the potential energy in the gravity is nothing but mgh. Correct now? So let's write the equation because the spring force and the gravitational force both are the conservative forces. तो मैं क्या बोलूँगा, initial and final point पे energy will be the same, right? So I will write E initial is equals to E final. Initial energy is equals to final energy. Initial energy में क्या क्या आएगा अक्षरा, they see initial energy में spring is in the relaxed position, तो spring के अंदर there is no compression or elongation. And at this initial point the speed of the block is also zero because मैंने अभी पकड़ के रखा है, right? So I can only say that the only energy that the spring is the block is having in the initial position is the gravitational potential energy. वैसे तो kinetic energy आना चाहिए plus potential energy आना चाहिए. That must be equals to final kinetic energy plus final potential energy because the initial speed is zero.
सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा उसका, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसका, m टाइम्स ऑफ g टाइम्स ऑफ h, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट पे आके भी देखो स्प्रिंग मैक्सिमम एलोंगेशन में रहेगा, बराबर ना। लेट्स से इस पॉइंट पे जब ब्लॉक आएगा तो स्प्रिंग में एलोंगेशन मैक्सिमम होगा, राइट। लेकिन स्पीड अभी भी जीरो होगा ब्लॉक का, क्योंकि अभी ये ऊपर जाने वाला है। तो एक कुछ मोमेंट के लिए इसका स्पीड जीरो हो जाएगा, अगेन द काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, प्लस अभी पोटेंशियल एनर्जी बाय द ग्राउंड कितना है अक्षरा, बताओ। H minus X. सो एम जी एच माइनस एक्स। लेकिन एक और पोटेंशियल एनर्जी आया है यहाँ पे, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी आया है, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी ना, हाफ की एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो। इज इट करेक्ट सोम्या? चेक करो, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन द फाइनल पोजीशन। अगर उतना नहीं समझ में आ रहा तो चेक करो, इनिशियली ब्लॉक यहाँ पे था, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं था। जब ये नीचे आएगा तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, राइट, डिक्रीज होगा इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है वही एनर्जी जाके स्प्रिंग में स्टोर हो रहा है। तो कितना हाइट से चेंज हुआ अक्षरा इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक्स हाइट से, राइट। सो आई सिंपली राइट एम जी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ के टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। समझा नहीं समझा? दिस इज द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जितना चेंज आया है उतना ही चेंज स्प्रिंग में गया है। So x gets cancelled from both the sides. I can write mg is equals to half times of k times of x, and the maximum elongation in the spring x का value, it is nothing but 2 times of m times of g divided by k. So this is the elongation. इससे भी कर लो, फाइनल आंसर वही आएगा, ठीक है। नाउ सिमिलर कंसेप्ट वी हैव टू अप्लाई इन दिस सिनेरियो एज वेल, बट उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये म्यू का वैल्यू 0.2 में हटाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेट्स टेक अ स्मूथ सरफेस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी कैन गो फॉर द रफ सरफेस, बिकॉज स्मूथ सरफेस के अंदर कुछ चीज़ें ईजी हो जाती है। So let's say this is again my seam block of mass 10 kgs. Okay. Again this is connected to a pulley which is going to another block of mass 20 kgs and the spring constant being 100 Newton per meter. So 20 kg is the mass and the spring constant K is equals to again 100 Newton per meter. चलो बताओ, let's say अक्षरा the block has come by the height x. कितना height नीचे गया block x. तो spring में elongation कितना आएगा सोम्या? Half K X square. नहीं ना, elongation, I'm only asking about the elongation in the spring. कितना खींचेगा spring? अक्षरा अगर ये ब्लॉक x से नीचे आया है, x डिस्टेंस नीचे आया है, तो ये ब्लॉक कितना डिस्टेंस आगे गया होगा? X distance. x डिस्टेंस। तो अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस आगे गया है तो स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना आया है? x ना, x इज द Yes, sir. एलोंगेशन, ओके। तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो ये जब डिस्टेंस नीचे जा रहा है ना तो इसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है। कितना आ रहा है? m टाइम्स ऑफ g टाइम्स ऑफ x। मतलब 20 टाइम्स ऑफ g का वैल्यू इज 10 मल्टीप्लाइड बाय x, ये आ गया एलोंगेशन। मतलब 200x जो है ये आया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, 20 kg वाले ब्लॉक का। अब ये जो 10 kg ब्लॉक लगा है स्प्रिंग को, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितने से इंक्रीज हुआ है? हाफ टाइम्स ऑफ k टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर से, राइट। तो जितना इसके अंदर डिक्रीज हुआ है उतना ही इसके अंदर इंक्रीज होगा। सो कैन आई ऑल्सो से दैट द वैल्यू ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ k का वैल्यू इज 100 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर इज नथिंग बट 200 टाइम्स ऑफ x. So I can also say 50x का square is equals to 200x. I can cancel out x from both sides. I'll be writing 50 times x is equals to 200, and therefore the value of x is nothing but 200 whole divided by 5. That is not 50. That is equals to 4 meters. तो जब maximum elongation आएगा x का कितना आएगा? 4 meters when it is a smooth surface, when the coefficient of friction is equals to 0. Now what will happen if I introduce some coefficient of friction in this scenario? तो क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, what will the friction do? Friction will try to consume the energy now. So let's say this is my block and this is my spring, and to the spring this is the block of mass 10 kg attached to the spring, and this is my pulley going over the spring, and it is furthermore connected to a block of mass 20 kg again. So this is 10 kg ka block and this is 20 kg ka block, right? And the coefficient of friction over here mu is equals to again 0.2. अब यहाँ पे मैंने k का वैल्यू भी तुमको 100 न्यूटन पर मीटर दे रखा है, ठीक है, 100 न्यूटन पर मीटर, ओके, अंडरस्टैंडिंग। चलो, नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, आई वांट यू टू अज्यूम कि अगेन ये ब्लॉक जो है वो x डिस्टेंस नीचे आया है। सो इफ द ब्लॉक हैज़ कम x डिस्टेंस नीचे, तो ये ब्लॉक भी कितना डिस्टेंस राइट जाएगा? X distance. और स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन भी कितना होगा? x का, अंडरस्टैंडिंग। अब देखो इसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितने का आया है टोटल? mgh ना,
So I can say the change in the gravitational potential m times of g times of x, मतलब 200x का इसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है। तो जितना इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा उसमें से कुछ एनर्जी जो है ये इसके अंदर चेंज आया ना, इसके पास एक घटी है एनर्जी। सी व्हेनेवर वी गो डाउन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो इसकी एनर्जी में जो डिक्रीज आया है, जो घटाव आया है, या जो इसके पास एनर्जी लूज हुई है, वो दो इंडिपेंडेंट चीज़ों को मिली है। इसके अंदर से जितना भी एनर्जी का लॉस हुआ है वो दो चीज़ों को मिला है। उसमें से पहला तो है स्प्रिंग और दूसरा है फ्रिक्शन फोर्स। अंडरस्टैंडिंग? हाँ ना, बोलो। तो जितना भी एनर्जी गया है, तो 200x यहाँ से लॉस हुआ है, ये किसको किसको मिला है? सबसे पहले तो स्प्रिंग को मिला है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, प्लस एट द सेम टाइम फ्रिक्शन फोर्स को भी इसमें से कुछ एनर्जी मिला है, तो म्यू टाइम्स ऑफ, चलो वर्क डन, जो भी फ्रिक्शन करेगा, राइट ना? अंडरस्टैंड? इफ़ यू वांट, तुम ऐसे करना चाहते हो वैसे करो, या फिर तुम इन जनरल अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो सब्ट्रैक्ट करो, इट्स ऑल अप टू यू। अंडरस्टैंडिंग? सो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, वैसे करना चाहते हो वैसे करो। मान के चलो ये हो गया फाइनल पोजीशन, ये हो गया इनिशियल पोजीशन। अंडरस्टैंडिंग? तो जितना भी वर्क आया है या तो वो फ्रिक्शन में गया है या फिर वो पूरा का पूरा स्प्रिंग ने कंज्यूम किया है, बराबर? सो इट्स ऑल अप टू यू, तुमको जैसे करना है वैसे करो तुम। ओके, हाँ चलो बताओ व्हाट्स गोना हैपन। इसके अंदर जितना भी चेंज आया है एनर्जी का, कैन आई डायरेक्टली से 200x। अब ये जो चेंज आया है ये सबसे पहले स्प्रिंग के एनर्जी के अंदर स्टोर हुआ होगा, हाफ के एक्स का स्क्वायर, और साथ ही साथ फ्रिक्शन ने भी वर्क किया है, तो प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस जो भी ट्रैवल किया है एक्स का डिस्टेंस। सो आई कैन सिंपली से 200x इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ के का वैल्यू हम सब्सटीट्यूटिंग 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस म्यू टाइम्स एम टाइम्स जी। So 0.2 multiplied by mass is 10 multiplied by g का value is again 10 multiplied by the distance is x. So 200x is nothing but 50x का squared, ठीक है, प्लस क्या आएगा इधर से 100 into 2 ना 20x। अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? सो ये 20x है, इधर लेके जाओ, माइनस 20x हो जाएगा, सो इट बिकम्स 200x माइनस इधर से आ जाएगा 20x इज इक्वल्स टू 50x का स्क्वायर। So I'll be left with 180x is equals to 50x का squared. Cancelling out x from both the sides, I'll be left with 180 is equals to 50 times of x. Correct? So from this scenario, I'll be writing the value of x is nothing but 80 divided by 5. 18 by 5, that's nothing but कितना आएगा? बोलो। 3.6 or 3.5 3.6, sir. meters. So this is the elongation in the spring, right? Or this is the maximum height to which the block of mass 20 kg will fall down. Correct? Yes, sir. Okay. और इवन इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट बाय अनदर वे एज वेल। इनिशियल फाइनल एनर्जी का भी लगा कर सकते हैं, मैंने बस डायरेक्टली ऐसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है बस, ठीक है, रफली करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग? चलो, सो मैं क्या बोलूँगा और यहाँ से, तो लेट्स सी फ्यू मोर क्वेश्चंस। हाँ, सो दीज आर द सम सीरीज ऑफ द क्वेश्चंस जो हम करते हैं वर्क पावर एनर्जी के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेना तुम लोग, हैव दिस ब्लॉक, ओके। दिस वॉज द क्वेश्चन दैट आई मेड बाय माई सेल्फ, और मैंने ये टेस्ट वगैरह में पूछा है मल्टीपल टाइम्स, तो अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ट्राई करना, ठीक है। सो द क्वेश्चन स्टेट्स दैट ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये हाइट जो है, दिस हाइट इज h, ओके, एंड दिस हाइट इज l ले लेना तुम लोग, ठीक है, एंड दिस हाइट इज स्मॉल h, एंड दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, और इट इज स्लाइडिंग। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, थ्रू आउट द सरफेस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है ब्लॉक को। दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम विच द ब्लॉक हैज स्टार्टेड द मोशन। अब ये नीचे आ रहा है, जैसे ये नीचे आएगा, दिस इज द फाइनल पॉइंट एट द, दिस इज फाइनल पॉइंट बी। सो राइट डाउन द क्वेश्चन दैट देर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m, अ ब्लॉक ऑफ मास m, mass m slides down a wedge road system, ये नीचे का रोड है, ठीक है, wedge road system as shown, full stop. Find the angle theta, या find tan theta ले लो, tan theta if the block
reaches point B with 0 speed. Reaches point B with 0 speed. चलो ट्राई करो. अच्छा क्वेश्चन है बाय द वे. ये क्वेश्चन ऐसा है, बड़े बड़े लोग इसमें हार मान जाते हैं. मतलब बहुतों ने पूछा, बहुतों को पूछा, बहुतों ने आंसर नहीं किया इस क्वेश्चन का. लेट्स सी तुम लोग को आता है नहीं आता. ठीक है. See, whenever the question is given to you, your concepts must be very crystal clear. Huh? So for that, the revision is the key. जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा मंथन करने का कोशिश करोगे कंसेप्ट को, उतना डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग आएगा और उतने बेटर कंसेप्ट होंगे, उतना बेटर उनका एप्लीकेशन होगा. अंडरस्टैंड. सो कंसेप्ट का एप्लीकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू आर एक्सपेक्टेड एट दिस स्टेज. एक बार अगर तुम लोग कंसेप्ट को खेलना सीख गए ना, तो बस बात खत्म. चलो लेट्स सी. डू वन थिंग, ये वाला लेंथ भी ले लेना तुम इफ पॉसिबल. ये वाला लेंथ ले लेना तुम, स्मॉल लेंथ. ठीक है. ये हॉरिजॉन्टल में लेंथ. चलो आप ट्राई करो. चलो, should I tell you the answer? Yes, sir. चलो. Okay. So for the first part, just imagine अक्षरा. Okay. अगर ये पूरा का पूरा हाइट h है, ये स्मॉल हाइट स्मॉल h है, तो what will be this height? Can you tell me? ये हाइट क्या होगा? What will be H this? minus H. Very good. So this height is gonna be h minus h. Okay. And similarly, if this is capital L, this is small l, तो ये लेंथ कितना होगा बता सकते हो? L minus L. L minus L. चलो, good, amazing. So अभी यहाँ पे मेरे को once I've got all these lengths, ठीक है. तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है उसका, anyhow. चलो. हाँ, मुझे बताओ अक्षरा, for this motion, सुमिया, I'm only looking at this motion of the block. जब ये ऊपर से नीचे स्लाइड करेगा. I've been told that there is this coefficient of friction mu that's acting throughout the motion of the block. The block has started its motion from the topmost point A and it is sliding down, and I've also told that the opposite side is h minus h. So can you tell me in this triangle, if I use the sine wala formula, what will be the length of this side? ये जो पूरा का पूरा incline है, इसका length क्या होगा? Hypotenuse का length. So in that triangle, can I say that the value of sine theta is equals to, बोलो, sine theta is equals to opposite side by hypotenuse ना? This side of her. तो यहाँ से x का वैल्यू Yes, क्या sir. आएगा? Can I say it's nothing but h minus h upon sin theta? Sin theta. So जो लेंथ हो जाएगा, that's gonna be h minus h by sin theta. Correct? Point number 1. अब I have to check that initially इसके पास में कुछ ना कुछ हाइट है h minus h, बराबर ना? मान के चलो this is my ground now. अभी मान के चलो फिलहाल में ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा अर्थ है. तो अर्थ से कितना हाइट पे है ये? h minus h हाइट पे है, बराबर ना? तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg h minus h ना? Yes, sir. Right. तो So- at this point it is having only a single potential energy at this point, initial potential energy. लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. अंडरस्टैंडिंग ना?
सो यहाँ पे इसके पास स्पीड रहेगा, लेकिन बिकॉज ये ऊपर से स्लाइड करता हुआ आया है, अंडरस्टैंडिंग। सो फाइनल इसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगा, इनिशियल इसके पास में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था और वर्क डन फ्रिक्शन ने किया है बीच में। सो कैन आई डायरेक्टली राइट दैट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नथिंग बट फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, राइट ना। फाइनल एनर्जी में Yes, क्या sir. आएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी में क्या आएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा इसका, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो अभी मैंने इसको ग्राउंड मान के चल रहा हूँ तो हाइट जीरो हो जाएगा इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बराबर ना। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम जीरो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वॉज जीरो बट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास में था, कितना था अक्षरा, एम जी एस माइनस एच। H minus H. सो दिस इज द चेंज इन एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग। ये फ्रिक्शन ने वर्क किया। अब फ्रिक्शन ने वर्क कितना किया, इफ दिस एंगल इज इंक्लिनेशन, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा ओवर हियर, कैन आई डायरेक्टली से दैट द फ्रिक्शन हैज डन द वर्क ऑफ पहले तो नेगेटिव वर्क करेगा ना, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स इट ऑलवेज डज अ नेगेटिव वर्क, याद रखो। अब वर्क कितना करेगा, एफ इंटू एस ना, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है म्यू टाइम्स ऑफ एम टाइम्स ऑफ जी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का वैल्यू क्या लिया था हमने, एच माइनस एच बाय साइन थीटा ना। Yes, sir. चलो एच माइनस एच बाय साइन थीटा। सो नेगेटिव नेगेटिव साइन यहाँ पे माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एम टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय एच माइनस एच अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है अक्षरा, हाफ एम वी स्क्वायर्ड माइनस एम जी एच माइनस एच, बराबर। सो ये कॉस थीटा बाय Yes, साइन sir. थीटा क्या होगा, कॉट थीटा ना। सो कैन आई डायरेक्टली राइट इट एज माइनस म्यू एम जी मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय एच माइनस एच is equals to half m v squared minus m times of g times of h minus h, बराबर। अभी ये v square is an unknown term that I have to eliminate from this part। अगर ये v स्पीड से आगे जा रहा है तो अभी हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट के लिए भी हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ अक्षरा, देखो इनिशियल स्पीड इसका v है, लेकिन जैसे ये पॉइंट v पे पहुँचेगा इस पर इसका स्पीड कितना होना चाहिए, जीरो ना। Yes, sir. तो जितना भी काइनेटिक एनर्जी अभी इसके पास में अवेलेबल है सारा का सारा फ्रिक्शन फोर्स ने अब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, तभी वो जीरो स्पीड से पहुंचेगा उधर, बराबर। Yes. सो कैन आई से दैट जितना इसके पास में काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर दैट मस्ट बी वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स म्यू टाइम्स ऑफ एम टाइम्स ऑफ जी, ये तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन, बराबर ना, थ्रू आउट द मोशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस विच इज एल, करेक्ट ना। Yes, sir. So Yes. this m and m gets cancelled. So v square का वैल्यू क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ g टाइम्स ऑफ l, समझा। Yes, sir. अभी ये v स्क्वायर का वैल्यू मैं इधर सब्सटीट्यूट करूँगा। सो आई विल बी लेफ्ट विथ म्यू टाइम्स ऑफ m टाइम्स ऑफ g टाइम्स ऑफ कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय h माइनस एच इज इक्वल्स टू हाफ m मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 म्यू जी एल माइनस m टाइम्स ऑफ g टाइम्स ऑफ कैपिटल H माइनस स्मॉल h अगेन, राइट ना। दिस टू गेट्स कैंसिल नाउ। अब एक बात याद रखो, ये m भी सब हर जगह से कैंसिल होने वाला है। सो दिस m and this m gets cancelled. So I'll only be left with mu times of g times of cot theta multiplied by h minus h is equals to mu times of g times of l minus g times of h minus h, बराबर, करेक्ट ना। Yes, sir. ओके ये माइनस रहेगा ना, इधर ही नहीं आओ, इधर भी माइनस रहेगा, ऊपर से माइनस साइन मैंने भूल गया था, ठीक है। चलो अब ये माइनस साइन इधर जाके प्लस होएगा ना, करेक्ट। या डू वन थिंग, नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड्स में, तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो चेक करो कुछ ऐसे ही होगा ना अक्षरा, म्यू टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय एच माइनस एच, ये प्लस है ना, प्लस माइनस हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये माइनस प्लस हो जाएगा, करेक्ट। सो इट बिकम्स जी टाइम्स ऑफ एच माइनस एच माइनस म्यू टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ एल, करेक्ट ना। अगेन जी गेट्स कैंसिल, चेक करो, जी ये भी कैंसिल हो जाएगा इधर से। So I'll only be left with mu times of cot theta multiplied by h minus h is equals to h minus mu l, बराबर, करेक्ट ना। सो यहाँ से cot Yes. थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ये देखो म्यू और h माइनस एच मल्टीप्लीकेशन में इनको डिवीजन में भेजो। सो cot थीटा का वैल्यू आएगा h माइनस म्यू एल होल डिवाइडेड बाय म्यू इन ब्रैकेट h माइनस एच, समझा, यस और नो। अब इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू इट्स गोना बी
क्या आएगा अक्षरा? सेपरेट करके लिखते हैं. सो दिस इज h माइनस h डिवाइडेड बाय म्यू टाइम्स ऑफ h माइनस h माइनस म्यू टाइम्स ऑफ l डिवाइडेड बाय म्यू टाइम्स ऑफ h माइनस h. ठीक है, म्यू म्यू गेट्स कैंसल्ड, इधर से h माइनस h कैंसिल हो जाएगा. सो आई विल बी लेफ्ट विद द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई म्यू माइनस l बाय h माइनस h. समझा? टैन थीटा मैंने निकालने बोला था ना, तो टैन थीटा का वैल्यू देखो, कॉट थीटा तो ये आ गया, अभी टैन थीटा पूछ रहा है तो टैन थीटा इसका इन्वर्स कर दो. तो यहाँ से क्या आएगा? टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा ना, सो म्यू इन ब्रैकेट h माइनस h डिवाइडेड बाय h माइनस म्यू टाइम्स l. बस. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टैन थीटा. समझा? अंडरस्टूड अक्षरा? दैट्स द रीजन. सी, वर्क पावर एनर्जी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग? जहाँ पे तुम्हारा सर चकराने लग जाएगा. और ये पूरे इजी क्वेश्चंस हैं. एडवांस लेवल क्वेश्चंस तो अभी आने बाकी है. अंडरस्टैंडिंग? अभी आई हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट एनीथिंग समथिंग रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन वाला पार्ट, बट स्टिल वी आर एट द बिगिनिंग लेवल. ठीक है. सो फॉर नाउ अच्छे खासे क्वेश्चंस हमने कर लिए, मैं बोल सकता हूँ. इफ़ यू वांट वी कैन गो फॉर मोर क्वेश्चंस. ओके, बट यू हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट वेरी वेल. तुमको कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए. देयर इज नो अदर ऑप्शन अदर देन दैट. समझ रहे हो? चलो. चलो. So the next question. लिख लो. This is angle theta. Okay, this is the block of mass m. Yeah. And this length is, base is a. Again ले लेना, base is a. ठीक है. Question is that from the given information, find the coefficient of friction between the block and wedge, such that the block descends down with zero speed. सबसे पहले तो चेक करो, इज इट पॉसिबल टू फॉर द ब्लॉक. अच्छा, सवाल समझो. ये ब्लॉक जैसे जैसे नीचे आएगा उसका स्पीड बढ़ता जाएगा. बराबर कृष्णा? अक्षरा? Yes, sir. ओके. बढ़ता जाएगा या कम होगा? बढ़ेगा. अंडरस्टैंडिंग? सो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे ही ब्लॉक ये नीचे आएगा, इस वाले पॉइंट पे जैसे ही आएगा, इसका स्पीड कितना होना चाहिए? 0. तो ऐसा मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है. सबसे पहले चेक करो कि डज दिस सिचुएशन एग्जिस्ट. क्या ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है? अगर हाँ तो निकालो, अगर ना तो क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो रीज़न बताओ उसका. ठीक है. ट्राई. आई विल गिव यू 2 minutes टाइम.
चलो let's see. Tell me Akshara, what's the situation? The condition states that I have to find the value of coefficient of friction mu such that the block returns the down or the bottom of the wedge with the zero speed, right? Correct, no? So this length given to me is A and the angle is given to me as theta, right? तो मुझे बताओ, in this triangle cos theta का value क्या होगा अक्षरा? Can I directly say that this length is hypotenuse is nothing but A by cos theta? Yes, sir. चलो. Now if this is the mass m and let's say this is the coefficient of friction mu throughout the motion, क्या होना चाहिए? ये height कितना होगा सोम्या? Can I directly say that this height is gonna be A by tan theta? Yes, sir. चलो निकाल के देखते हैं, ठीक है? In general, A by tan theta आएगा, A tan theta आएगा. Let's say x. जो बताओ अक्षरा, what is the value of tan theta? X upon A ना? So the value of x is nothing but A times of tan theta. Understanding? So ये value हो जाएगा A times tan theta. Correct ना? So height is A times tan theta and this length is A by cos theta. Correct? अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Initially because throughout the motion only the friction force is acting. तो मैं बोलूँगा let's say this is the initial energy at this point and this is the final energy at this point. Correct ना? Again I'll say work done by the friction is nothing but total change in energy. So the work done by the friction is nothing but energy final minus energy initial. Work done by the friction क्या आएगा अक्षरा? It's nothing but F bar dot S bar again ना? That is equals to energy final minus energy initial. अब मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क इज ऑलवेज नेगेटिव ना, सो मैं क्या मैं डायरेक्टली इधर माइनस एफ इंटू एस लिख दूँ सिंपली. दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी फाइनल, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया फाइनल एनर्जी, माइनस इनिशियल एनर्जी में आएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, राइट. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस एफ इंटू एस. अच्छा, माइनस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या है? म्यू टाइम्स ऑफ एम टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ कॉस थीटा. ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का वैल्यू क्या है अक्षरा? ए बाय कॉस थीटा ना. सो ए बाय कॉस थीटा. करेक्ट? Yes, sir. बराबर लिख रहा हूँ मैं. चलो, दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होना चाहिए, और अगर हाइट जीरो है इसका तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होना चाहिए. तो फाइनल एनर्जी इज ओवरऑल जीरो यहाँ पे, ठीक है. माइनस इनिशियल एनर्जी, तो माइनस इनिशियल में इसका रेस्ट से स्टार्ट किया है इसने, तो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा अक्षरा. बराबर. सिर्फ इसके पास में होगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, कितना है? एम जी एच. सो मास इज एम मल्टीप्लाइड बाई जी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट? ए टैन थीटा. करेक्ट. सो एम जी टाइम्स ए टैन थीटा. सो कॉस थीटा गेट्स कैंसल्ड. माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एम टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस एम टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ ए टाइम्स ऑफ टैन थीटा. क्या क्या कैंसिल होगा? एम जी ए नेगेटिव साइन कैंसिल होगा. सो म्यू मस्ट बी इक्वल्स टू टैन थीटा. समझा तुमने? यस और नो? Yes. Yes, sir. अच्छा अक्षरा, व्हेन म्यू का वैल्यू टैन थीटा होगा, हमने फ्रिक्शन के अंदर एक और कंडीशन पढ़ी थी, यू रिमेंबर दैट? क्या होती है कंडीशन? बोलो. मैंने क्या बोला था तुमको? यू रिमेंबर द कंडीशन वी स्टडी इन द फ्रिक्शन, म्यू और टैन थीटा के बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है ना? क्या होता है? चलो बताओ. लेट्स से दिस इज माय वेज. बराबर. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा. लेट्स से आई एम पुटिंग अ ब्लॉक ऑफ मास एम ऑन दिस वेज. नीचे के साइड में फोर्स कितना लगेगा इस पे सोम्या? एम जी. Sin theta. और ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा इसका? म्यू एम जी कॉस थीटा, राइट. अब अगर दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो इसका ब्लॉक का मोशन नहीं होगा ना अक्षरा? ब्लॉक विल बी एट रेस्ट ना. Yes, sir. So block will be rest, that means both the forces must be equal. So I will write mu times of m times of g times of cos theta must be equals to m times of g times of sin theta. So mg दोनों साइड से कैंसिल करो, तो यहाँ से mu times of cos theta is equals to sin theta आ रहा है. बराबर. So the value of mu is nothing but, ये cos theta मल्टीप्लीकेशन में है, इधर भेजो डिवीजन में जाएगा sin theta अपॉन cos theta. क्या होता है? tan theta अगेन ना.
Yes, sir. तो इधर म्यू इक्वल्स टू tan थीटा मिल रहा है, इधर भी म्यू का वैल्यू मेरे को tan थीटा मिल रहा है. दैट मीन्स व्हाट? अगर म्यू का वैल्यू tan थीटा हो गया अक्षरा, दैट मीन्स द ब्लॉक विल नॉट मूव ना. Yes. तो यहाँ से मेरे को कैलकुलेशन से क्या मिल रहा है? म्यू का वैल्यू tan थीटा. मतलब क्या कि अगर बाय चांस मैं निकालना ही चाह रहा हूँ थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू मेरे को मिलेगा tan थीटा. मतलब क्या है? इस वैल्यू ऑफ tan थीटा के लिए ये ब्लॉक मूव ही नहीं होगा. अंडरस्टैंडिंग? जगह पे ही रहेगा. अगर मूव नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये ब्लॉक नीचे आ ही नहीं रहा. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ब्लॉक टू कम डाउन विद द जीरो स्पीड. समझ रहे हो? अगर तुम जीरो स्पीड से आने का ही बोल रहे हो, तो इससे बेहतर है कि ये ब्लॉक नीचे आएगा ही नहीं, जगह पे रुकेगा. अंडरस्टैंडिंग? दैट मीन्स अगर तुम लोग बोल रहे हो कि इफ़ द ब्लॉक हैज़ टू कम डाउन, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम स्पीड अलॉन्ग दिस पाथ ना. कुछ स्पीड से ये आया होगा. बट म्यू का वैल्यू tan थीटा मिल रहा है. म्यू का वैल्यू tan थीटा का मतलब ही ये है कि ये ब्लॉक अपनी जगह से हिला ही नहीं है. दैट मीन्स ये ब्लॉक का स्पीड जीरो है थ्रू आउट द मोशन. ये पॉसिबल नहीं है. स्पीड जीरो रह के ब्लॉक नीचे नहीं आ सकता. अंडरस्टैंडिंग? तो ब्लॉक जगह पे ही रहेगा, ब्लॉक नीचे आएगा ही नहीं. समझ रहे हो? tan थीटा के लिए. सो इट्स नॉट पॉसिबल कि ब्लॉक नीचे आए और एट द सेम टाइम जीरो स्पीड से भी नीचे आए. ठीक है? सो सिंपली इसका आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ब्लॉक टू कम डाउन विद जीरो स्पीड. समझ रहे हो? It is not possible for the block to come down with zero speed. That is the simple answer for this question. समझा all of you? Yes or no? So these are all the basic concepts that Yes, are sir. expected you to click. तुम्हारे माइंड में जल्दी से जल्दी क्लिक हो जाए तुमको. ठीक है? अब आई डोंट नो तुमको ज़्यादा क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है, या पता नहीं तुमको याद है, कंसेप्ट नहीं याद है. बट वी हैव डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन फ्रिक्शन फोर्स, राइट? tan थीटा का वैल्यू देखा था हमने. इफ द वैल्यू ऑफ म्यू इज लेस देन tan थीटा, देन एंड ओनली देन द ब्लॉक विल स्लाइड डाउन. अंडरस्टैंडिंग? ये पूरा हुआ था ना अपना? यस और नो? चलो. Yes, sir. सो एक क्वेश्चन ले लो. ठीक है? द क्वेश्चन स्टेट्स, वन मोर क्वेश्चन स्प्रिंग के ऊपर दे रहा हूँ मैं. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके? एंड दिस इज द फाइनल क्वेश्चन. आफ्टर दिस वी विल बी स्टॉपिंग फॉर टुडे. सो मैंने क्या किया, दिस इज़ द स्प्रिंग, और मैंने स्प्रिंग को ऑलरेडी एलोंगेट करके रखा है. ठीक है? इसका नेचुरल लेंथ एल नॉट था. एल नॉट इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर. लेकिन अभी मैंने इसको एलोंगेट करके रखा है. एक्स इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर तक, मतलब 0.5 मीटर तक मैंने इसको एलोंगेट करा है. एंड द block of mass 20 kg is attached to the spring, and the value of coefficient of friction mu is equals to 0.2 here. If the value of spring constant k is equals to 200 Newton per meter, ठीक है? Question is that question states find the maximum speed of the block. सवाल समझा तुमको? देखो अक्षरा, मैंने क्या किया, सबसे पहले स्प्रिंग को खींच के लगा था एलोंगेट करके. कितना एलोंगेशन है इसके अंदर? 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर, आधा मीटर का मैंने एलोंगेशन लाया है स्प्रिंग में. इस स्प्रिंग को खींच के मैं 20 kg का ब्लॉक लगा रहा हूँ. यहाँ पे रफ सरफेस है, 0.2 है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और मैं ये सिचुएशन को छोड़ रहा हूँ. व्हाट विल हैपन? द स्प्रिंग विल पुल दिस ब्लॉक इन द लेफ्ट साइड, राइट? है ना? So, तो अगर if the spring is pulling the block in the left side, I can say that the speed of the block will continuously go on increasing. बराबर? yes, sir. बट जैसे जैसे ब्लॉक लेफ्ट में जाता जाएगा, स्प्रिंग का एलोंगेशन क्या होता रहेगा अक्षरा? कम 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 होता रहेगा ना? Yes. तो जैसे ही ये 50 सेंटीमीटर का एलोंगेशन ब्लॉक कवर कर लेगा, क्या स्प्रिंग इसके नेचुरल लेंथ में वापस आ जाएगा? Yes, sir. लेकिन ब्लॉक अभी भी किधर जा रहा होगा अक्षरा? Left side. लेफ्ट में. तो स्प्रिंग क्या करेगा? ब्लॉक को किधर पुश करेगा? Right side. राइट साइड. तो जब ये ब्लॉक को राइट साइड में पुश करेगा, तो ब्लॉक का स्पीड क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. Yes. तो लेफ्ट साइड में जैसे आ रहा था, स्पीड बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, मैक्सिमम स्पीड इधर आएगा. अब जैसे ही मैक्सिमम स्पीड अचीव हो गया, अब स्प्रिंग जो है वो राइट में पुश करके ब्लॉक का स्पीड कम करने की कोशिश कर रहा है. अंडरस्टूड? Yes, sir. सो दैट इज माई सिचुएशन. तो फाइंड दैट मैक्सिमम स्पीड, कि किस मैक्सिमम स्पीड से स्प्रिंग ये इस ब्लॉक के पास मैक्सिमम स्पीड कितना होगा थ्रू आउट द मोशन. अंडरस्टूड? यस और नो? कैसे करेंगे अक्षरा? Yes, sir. So we are looking for the two scenarios in which the first one is this initial scenario जहाँ पे spring का elongation maximum है, and the second scenario in which the elongation of the spring is zero but the speed of the spring is maximum, right? तो इनिशियल सिनेरियो के पास में ब्लॉक के पास देयर इज सिंगल एनर्जी, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. सिर्फ यही एनर्जी है ब्लॉक के पास में.
लेकिन फाइनली ब्लॉक के पास में एक ही एनर्जी है जो कि है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन थ्रू आउट द मोशन द स्प्रिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है वो खा रहा है एनर्जी को। सो मैं क्या बोलूँगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट द फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, बराबर। फाइनल एनर्जी में ब्लॉक के पास देर इज जस्ट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एक होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये भी गलत है, मतलब जीरो है, राइट। फाइनल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी में क्या आएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ब्लॉक के पास में जीरो है, बिकॉज ब्लॉक का इनिशियल स्पीड जीरो था, बराबर अक्षरा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा मेरे पास में। ये हो जाएगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, बराबर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, तो माइनस लिख लो। अभी आ जाएगा एफ इंटू एस, बराबर ना। दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, बराबर ना, यस और नो। सो माइनस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ एम टाइम्स ऑफ जी। अक्षर ये डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 50 सेंटीमीटर ना, जो कि इलोंगेशन था पहले, अंडरस्टैंडिंग। Yes, sir. Multiplied by 50 is equals to half times of mass of the block is again 20 kg multiplied by v squared minus half k का वैल्यू है 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इलोंगेशन कितना था इसके अंदर, 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 का मीटर इसका स्क्वायर, अंडरस्टैंडिंग। सो माइनस म्यू का वैल्यू क्या था, 0.2 ना, सो माइनस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय मास इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 जी का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर, मतलब सॉरी 0.5 मीटर जाएगा डिस्प्लेसमेंट, into 0.5 is equals to half multiplied by mass is 20 multiplied by speed का square minus half multiplied by k का value is 200 multiplied by 0.5 का square that is 0.25. अब simplify, that's it, there is no other option to simplify. So 20 into 10 is 200, 200 into 0.5 becomes 100, 100 into 0.2 becomes 20. So minus 20 is equals to 10 times of v squared minus, again 2 ones are 2, ये आ जाएगा 100 and it becomes 100 into 0.25, it's 25, अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे ये माइनस 25 उधर जाएगा इट बिकम्स प्लस 25, सो 25 इज इक्वल्स टू 10 वी का स्क्वायर। अब 10 इज इन मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन में भेजो, सो 25 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर एंड देयरफॉर टेक स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, 5/√10 इज द फाइनल स्पीड with which the block will move मीटर पर सेकेंड, समझा। सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक 5/√10 या 5√10/10 बोल लो, इसको रैशनलाइज कर लो, डिनोमीटर मुझे अच्छा नहीं लगता, या इन जनरल इसको तुम √10/2 भी बोल सकते हो, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, अंडरस्टूड। नाउ दीज आर हाउ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन वर्क पावर एनर्जी, समझो। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम तो कल आएगा अपना, ही नहीं, ठीक है। So the only thing is that you have to be a little careful about dealing with the non-conservative forces. Conservative forces के केस में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है. We can directly say that the initial and the final energy is constant. समझ रहे हो? एक और क्वेश्चन ले ले क्या? और should you stop over here? All up to you. Stop here, sir. चलो ठीक है, let's stop. So revise these questions once again, okay? These are important questions anyhow. ठीक है? चलो. So if you have any doubt, you can ask me, or else we can stop here for today.